الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تجوید القرآن کورس کا لیکچر نمبر 13 شروع کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم را اور لام کے کچھ خاص قاعدے پڑھیں گے، جس کے بعد آپ کافی زیادہ چیزوں سے واقف ہوں گے، کیونکہ جب ہم قرآن عظیم پڑھتے ہیں کچھ حروف ہمارے موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف کو ہمیں پتلا پڑھنا پڑتا ہے. البتہ کچھ حروف کنڈیشنل ہوتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز میں وہ موٹے ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز میں وہ پتلے ہو جاتے ہیں. انہی صورتوں کے تحت آج ہمارا درس ہوگا. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے را کو پر یا باریک پڑھنے کے قاعدے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے لامی جلالہ مطلب جو اللہ، لفظ اللہ میں جو یہ لام بیچ میں ہے نا، اس کو لامی جلالہ کہتے ہیں. لامی جلالہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا قاعدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم جانکاری حاصل کریں گے. سب سے پہلے آپ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ قرآن عظیم میں جو ہمارے پاس حروف الہجا ہے، جن کی تعداد 28 یا 29 ہے، ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، اور ان حروف کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں، کیونکہ ان حروف پر صفت استعلا کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھایا جاتا ہے. جب زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھایا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ حروف منہ بھر کے یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں. ان حروف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں. ان حروف کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. انگریزی میں کہیں گے these are the bold sounded letters، یعنی یہ ایسے حروف ہمارے پاس ہے، یہ ایسے ہمارے پاس حروف الہجا ہے، الفابیٹس ہے، جن کو ہم منہ بھر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ ہے وہ 7 حروف جو ہمیشہ ہر کنڈیشن میں، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تشدید ہو، سکون ہو، یہ ہر کنڈیشن میں یہ 7 حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حروف کون کون ہیں؟ سب سے پہلے ہے خا جو ہے، آپ دیکھیں جب بھی ہم موٹا کسی حرف کو پڑھتے ہیں نا، ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. خا خی خو اخ اخ، یعنی ہر کنڈیشن میں اس کو موٹا پڑھیے، آواز کو موٹا کیجیے. اور موٹا کیسے ہوگا؟ جب ہم زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھائیں گے تو یہ حرف خود بخود موٹا پڑا جائے گا. خا جو ہے یہ حروف حلقی میں بھی ہے، اس پہ صفت ادا ہوتی ہے، صفت مستعلیہ. اس کے بعد ہے صاد، جیسے اس. اس کے برعکس ہمارے پاس ہے سین، اس سین کی آواز ہے، اور اس صاد کی آواز ہے، صاد. الصمد، اس صاد صمد، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت ہے صمد. یہ صمد نہیں ہے، وہ سین سے ہے، یہ صاد سے ہے. صاد کو جب بھی آپ پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کریں گے اور زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے، جس کو صفت استعلا کہتے ہیں. اسی لیے صاد بھی حروف مستعلیہ میں ہے. صاد جو ہے یہ حروف وسطی ہے، یعنی یہ یعنی زبان کے بیچ میں سے ادا ہوتا ہے، یعنی منہ میں ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے غاد جو ہے، اس پہ بھی یہ صفت ادا ہوتی ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ ہے. اور غاد کو پڑھتے وقت یا تو ہمیں آواز دائیں جانب لینی پڑے گی اپنی زبان کو، یا بائیں جانب. غاد یا جیسے ہم پڑھتے ہیں والا
दाद को लंबा कीजिए, दाद को मोटा पढ़िए, दाद को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करें, आवाज को मोटा करें और जबान की जड़ को ऊपर की तरफ उठाइए। इसी तरह है तो ता और ता में आपको फर्क करना है। कैसे पढ़ेंगे? ता ता तुई तु, ये तू नहीं है, ता पेश तू और ता पेश तू, ये फर्क है इसमें। इसी तरह ताजेर ती, ताजेर तुई तुई, ये ती नहीं है, फर्क करना है ता और ता में, क्योंकि ता जो है ये हुरूफ मुस्तालिया में। उसके बाद है वा, ये दाल से अदा करना है। अल, अलिफ यानी हमजा पे जबर और दाल पे सुकून होगा। अल, ये है अल वा। अल, दाल को भी नरम पढ़ते हैं, वा को भी नरम पढ़ते हैं, मगर दाल को पढ़ते वक्त हम आवाज मोटी नहीं करते, वो मोटा हर्फ नहीं है। जबकि वा जो है आवाज को पढ़ते वक्त, अदा करते वक्त वा को, आवाज को हम मोटा करेंगे, मुंह भर के पढ़ेंगे, होंठ को गोल करेंगे और जबान का तालु जो है, जबान का जो जड़ है वो तालु की तरफ उठाएंगे। आओ, तो है ना, ऐसे पढ़ना है वाह वाह, अजीम, जैसे वाह से। इसके बाद है गईन, ये गईन नहीं है, गईन, गा को भी मोटा पढ़ेंगे, गईन को भी मोटा पढ़ेंगे। अब मगदूबी, मग। उसके बाद है कौफ, और हमें पता है कौफ से मिलती जुलती आवाज है कैफ की। कैफ हमारे पास बारीक होता है, किताब वाला कैफ, जबकि कौफ हमारे पास मोटा होता है। आप कौफ पे कलकला भी होता है ना। आप कौ की कु, मोटी आवाज कीजिए। और कौफ का वैसे भी मखरज ही है, जबान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ उड़ जाता है, इसकी मखरज और इसका जो सिफ्त है वो दोनों मिल जाता है कौफ में, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में। तो इन 6 हुरूफ को आप याद रखिएगा कि हर कंडीशन में ये 7 हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं। खा, साद, दाद, आ, वा, गईन और कौफ। ठीक है, हुरूफ मुस्तालिया वो हुरूफ जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। इसके बाद हमारे पास रा है, रा, और इसके बाद लामी जलाला में लाम है, अल्लाह के लाम में लाम है। ये 2 हुरूफ कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब ये कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। बारीक का मतलब होता है मोटे से अपोजिट में। मोटा मतलब आवाज को मुंह भर के अदा करना, होंठों को गोल करना, जबान की जड़ को ऊपर की तरफ उठाना, इसको हम कहते हैं मोटा करना, हुरूफ मुस्तालिया। ठीक है, जबकि बारीक इसके अपोजिट में आता है। बारीक का मतलब होता है पतला पढ़ना, मुंह भर के नहीं पढ़ना। यानी जो सिफ्तें आप मोटे को देते हैं, या हम कहेंगे हरूफ मुस्तालिया को देते हैं, उसके अपोजिट में बारीक जो हरूफ है वो अपोजिट हो जाते हैं। बारीक हरूफ को हरूफ मुस्ता, इनको तो हमने हमने इनका नाम दिया हरूफ मुस्तालिया, उनको हम हरूफ मुस्तफला कहते हैं। मुस्तफला जो बारीक पढ़े जाते हैं, क्योंकि उन पे सिफत इस्तेफाल होती है। इस्तेफाल का मतलब होता है बारीक अदा करना। ये जो हमारे पास मोटे हरूफ है, हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, उनकी तादाद 7 है। बाकी हरूफ सब बारीक हरूफ मतलब गिने जाते हैं। मगर उन बारीक हरूफ में 2 हरूफ ऐसे हैं जो कंडीशनल कभी कभी मोटे भी पढ़े जाते हैं। उसमें सिर्फ सबसे पहले रॉ है। अब रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ने के क्या कायदे हैं आप याद रखिएगा। रॉ जो है ना, रॉ के 12 हालात हैं, और इन 12 हालात में रॉ को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। पुर पढ़ने को अरबी में हम कहते हैं तफखीम के साथ पढ़ना। तफखीम, और जिस हर्फ पर तफखीम हो उसको कहते हैं मुफक्खम। मुफक्खम मतलब जो तफखीम के साथ पढ़ा जाए, जो मोटा पढ़ा जाए, जो पुर पढ़ा जाए। रॉ जो है ये 12 हालात में मोटा पढ़ा जाता है, बाकी हालात में ये पतला पढ़ा जाता है, बारीक पढ़ा जाता है। अब कौन से हालात पे रॉ को ऊपर पढ़ा जाता है याद रखिएगा। जब रॉ मफ्तू हो, मफ्तू मतलब जब इस पे जबर हो, और मुशद्ददा जब इस पे तशदीद भी हो। जैसे यहां पर है अर्रहमानु, अर्रहमानु, अर, रॉ को हमने मोटा पढ़ा, पुर पढ़ा। वजह उसकी ये है कि रॉ पे जबर है और रॉ पे तशदीद भी है, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन रा मफ्तूहा, मफ्तूहा मतलब रा पे जबर हो, गैर मुशद्ददा मगर तशदीद ना हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रहीमुन, रा, रहीमुन, इसमें भी रा को पोर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है। तीसरी कंडीशन है रा मदमूमा मुशद्ददा। मदमूमा कहते हैं जब रा पे पेश हो, मदमूम जुम्मा कहते हैं पेश को। जब भी रा पे आप पेश देखेंगे इसको कहते हैं मदमूम। ठीक है, मदमूम मतलब जुम्मा वाला, पेश वाला। जब भी रा पे पेश होगा, साथ में तशदीद होगी, तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे यहां पर लिखा है मर्रू, मर्रू, मर्रू। ठीक है। चौथी कंडीशन है रा मदमूमा, यानी रा पे पेश होगा, गैर मुशद्ददा मगर तशदीद ना हो। जैसे रुबामा, रुबामा, यहाँ पे भी रा को पुर पढ़ा जाएगा। पांचवी कंडीशन है जब रा साकिन हो, यानी रा पे जज्म हो, माकबल मफ्तूह, माकबल जबर हो। जैसे रा पे यहाँ पर आप सुकून देख रहे हैं, जज्म देख रहे हैं, उससे पहले हमजा पर जबर है, और साला, और अब देखिए और साला, और साला। उसके बाद हमारे पास छठी कंडीशन है जब रा साकिन हो, माकबल मदमूम हो, यानी रा सुकून में हो, उससे पहले हर्फ पर पेश हो। जैसे यहां पर है युरज़क़ूना, युर, युर, यानी रा को मोटा पढ़िए, पुर कीजिए, मुंह भर के पढ़िए, युरज़क़ूना। सातवीं कंडीशन है रा साकिन होगा, माकबल कसरा जो होगा वो आरजी होगा, यानी रा पे जज्म होगा, उससे पहले हर्फ पर जेर होगी, मगर जेर जो होगी वो ओरिजिनल नहीं होगी, वो आरजी होगी। मिसाल के तौर पर यहां पर आप जो देख रहे हैं ना लफ्ज, ये है इरजि, इरजिई। असल में जो ये हमने जो हमजा के नीचे जेर दी है ना, ये ओरिजिनल जेर नहीं है। इससे पहले लफ्ज जो है वो डायरेक्टली रा के साथ मिलता है। मगर अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ ये लफ्ज है, उससे पहले अलिफ है, अलिफ को हम आर्जी तौर पे जेर देंगे। ठीक है। यूजुअली अगर रा पे जेर होगी तो रा बारीक पढ़ा जाता है, और रा साकिन माकबल जेर होगी तब भी बारीक पढ़ा जाता है। मगर यहाँ पर क्या है, ये रा साकिन से पहले जो जेर है ना, ये आर्जी है, ओरिजिनल नहीं है, टेम्पररी है। इसलिए ये जो ये रा है ये पुर पढ़ा जाएगा, हालांकि जेर है माकबल, मगर पढ़ा जाएगा एर, जे, एर। रा को मोटा पढ़िए, एर, जे। उसके बाद वाली कंडीशन है जब रा साकिन हो, माकबल कसरा हो, यानी माकबल जेर हो, मगर वो जेर दूसरे कलिमे में, जैसे यहां पर लिखा हुआ है रब्बिरजिऊना, रब्बिर, क्योंकि रब भी अलग एक हमारे पास यानी कलिमा है, और इरजिऊना अलग कलिमा है। अगर इनको दोनों को मिलाएंगे, आप देखिए रा साकिन है, माकबल जो जेर है वो दूसरे कलिमे में, इस सिचुएशन में भी रा को मोटा पढ़ेंगे, रब्बिरजिऊना। इस तरह हमारे पास 8 कंडीशन हुए। 9वीं कंडीशन रा साकिन है, माकबल भी साकिन है, इससे पहले भी साकिन है, और माकबल मफ्तू है, उससे पहले जबर है। जैसे यहां पर है कादर, कादर, रा साकिन, माकबल दाल है वो भी साकिन, उससे पहले जबर, कादर। इसमें भी हमने इन्हें रा को पुर पढ़ना है। ये जब हम जब पढ़ते हैं ना हम सूरतुल कदर है, तो उस वक्त में रा चूंकि हम वक्त की सूरत में पढ़ते हैं, सुकून बनता है, उससे पहले भी सुकून है, उससे पहले जबर है, उस जबर की वजह से रा पुर पढ़ा जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10वीं कंडीशन है रा साकिन, माकबल साकिन, माकबल जुम्मा, यानी माकबल मजमूम है, यानी हमारे पास रा साकिन है, माकबल साकिन है, उससे पहले पेश है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बिकुमुल उसरा, बिकुमुल, आप देखिए यहाँ पर उसरा, उसरा के बजाय पढ़ेंगे बिकुमुल उसरा। रा साकिन, सीन पे भी सुकून है, यानी माकबल भी साकिन है, और उससे माकबल आइन है, उस पे पेश है, तो इस सूरत में भी रा को पुर पढ़ा जाएगा। इसके बाद हमारे पास
11th कंडीशन है रा को पुर पढ़ने की, वो है रा साकिन माकबल कसरा, यानी उससे पहले जबर जेर है माकबल कसरा, माबाद हरफी मुस्तालिया, मगर उसके बाद वाला जो रा के बाद वाला हर्फ है वो हरूफ मुस्तालिया है, यानी साद दाद ता वा गैन खा और क़ाफ, इन 6 हरूफ में से कोई है। जैसे यहाँ पर आप देखिए क़िर ता सिन, रा साकिन माकबल जेर हिसाबन तो रा बारीक होना चाहिए, मगर रा साकिन के बाद माबाद है वो है ता, तो ये पढ़ा जाएगा क़िर ता सिन। इस हर्फ मुस्तालिया की वजह से ये रा जो है हालांकि साकिन माकबल जेर है, इसके बावजूद रा पूर पढ़ा जाएगा। इसी तरह फिर कातिन, फिर फिर कातिन, रा साकिन माकबल जेर मगर माबाद हरूफ मुस्तालिया। इसी तरह मिर सादिन, मिर सादिन नहीं, मिर रा को पूर पढ़िए क्योंकि रा साकिन माकबल जेर और माबाद हरूफ मुस्तालिया। इसी तरह इरसादन, रा साकिन माकबल जेर मगर माबाद हरूफ मुस्तालिया। ठीक है, ये 11वीं कंडीशन। और आखिरी कंडीशन जिस सूरत में रा पुर होता है वो है जब रा मदमूम जिस पर राउम के साथ वक्फ किया जाए। ये राउम क्या है वक्फ की सूरत में, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, मगर आप देखिएगा जब रा साकिन, यहाँ पर आप देखिए मुंतसिर, यहाँ पर रा साकिन होगा माकबल जेर है, ये हालांकि हमारे पास बारीक होना चाहिए, मगर एक कंडीशन होती है वक्फ की जिसको राउम वक्फ कहते हैं। ये मैं इंशाल्लाह वक्फ में आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। अभी इस 12वीं कंडीशन को ऐसे ही आप याद रखिएगा कि रा अगर मजमूम हो, पहले मजमूम है ये, मगर अब इस पे सुकून किया जाएगा, मगर वो वक्फ जो होगा वक्फ बिल राउम है, क्योंकि अब हमारे पास वक्फ की 3 किस्में हैं, वक्फ बिल इश्माम, वक्फ बिल राउम और एक और कंडीशन है। अगर हम रा को वक्फ बिल राउम करेंगे तो उस वक्त भी रा पुर हो जाएगा। तो इस तरह ये 12 कंडीशन हमारे पास है जिन सूरतों में रा को पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, तफखीम के साथ अदा किया जाता है, या आम सूरत में हम कहेंगे कि रा जो है उसको मोटा पढ़ा जाता है, होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। ठीक है, अब कुछ नोट याद रखिए, ये कुछ खास कंडीशन है कि सूरह शुरा में लफ्ज फिरकिन की रा को जिस तरह चाहे पढ़ सकते हैं, इसमें दोनों कंडीशन है। हालांकि रा साकिन माकबल जेर माबाद हर्फ मुस्तालिया, इस रूल के हिसाब से रूल नंबर 11 की वजह से रा यहाँ पर हमें पुर पढ़ना है फिरकिन, मगर अगर आप फिरकिन भी पढ़ेंगे, रा को बारीक भी पढ़ेंगे, तो इसमें आपकी इजाजत है। ये खास कंडीशन है सूरह शोरा के लफ्ज फिरकिन में, ये खास कंडीशन है, एक्सेप्शनल कंडीशन। और हरूफ मुस्तालिया मैंने आपको बताया, वो हरूफ मुस्तालिया कौन से 7 हरूफ है, ये हरा के साथ बाद के हरूफ आएंगे तो पुर पढ़ा जाएगा। और राउंड के साथ वक्फ करने का मतलब इंशाल्लाह जब मैं आपको वक्फ पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा वक्फ बेर राउंड किसको कहते हैं, उस सूरत में रा को मोटा पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो रा जो है हर्फ आम सूरतों में बारीक पढ़ा जाता है, मगर 11-12 कंडीशंस में रा को पूर पढ़ा जाता है। हालांकि रा जो है यह हरूफ मुस्तालिया में नहीं है, क्योंकि पुर पढ़े जाने वाले हरूफ को हम हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, इन पे सिफत इस्तिआला होता है इसीलिए उनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। मगर रा जो है यह हरूफ मुस्तालिया में होने न होने के बावजूद 12 कंडीशन में ये पुर पढ़ा जाता है, ये मैं कंडीशन आपके सामने बयान की। अब रा बारीक का पढ़ा जाता है, यानी पुर के अपोजिट में बारीक है, तो बाकी जो हालतें हैं जैसे 7 हालतों में रा को बारीक पढ़ा जाता है। बारीक पढ़ने को तरकीक कहते हैं, पुर पढ़ने को तफखीम कहते हैं, बारीक पढ़ने को तरकीक, तरकीक, मुरक्किक, मुरक्किक मतलब जो तरकीक के साथ पढ़ा जाए, तरकीक बारीक पढ़ना, यह अरबिक टर्म है मुरक्किक या तरकीक। तरकीक का मतलब होता है बारीक पढ़ना, तफखीम का मतलब होता है पुर पढ़ना। आम जबान में मोटा पढ़ना, पुर पढ़ना, बारीक पढ़ना, पतला पढ़ना। 7 हालतों में रा को बारीक पढ़ा जाता है। सबसे पहले रा मकसूरा, रा पे जेर हो, मुशद्ददा और तशदीद भी हो, जैसे यहाँ पर लिखा है अर रिजालु, अर रिजालु, री रू नहीं पढ़ेंगे, रिजालु, रिजालु। इसी तरह रा मकसूरा, रा पे जेर हो,
गैर मुशद्ददा, तशदीद ना हो, जैसे रिजालुन। अब यही रॉ पुर पढ़ा जा रहा था, बाकी कंडीशंस में 12 कंडीशंस में वही रॉ बारीक पढ़ा जाता है। तो इसीलिए रॉ के मखरज को हम अलग पढ़ते हैं, रॉ के सिफ्त को हम अलग पढ़ते हैं। इस पे अलग अलग कायदे होते हैं, कुछ कंडीशंस में पुर पढ़ा जाता है, कुछ में बारीक। तीसरी कंडीशन जिसमें रॉ को बारीक पढ़ा जाता है वो रॉ साकिन माकबल मकसूर। मकसूर मतलब माकबल हरफ पे जेर हो, जैसे शिरअतुन, शिरअता। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी तरह रा साकिन माकबल साकिन माकबल मकसूर। रा साकिन होगा, उससे पहले हरफ पे भी सुकून होगा, उससे हरफ पहले जेर होगी, जैसे हिजर, हिजर। और ये कंडीशन अक्सर वक्त की सूरत में आती है। पांचवी कंडीशन रा साकिन माकबल या साकिन। अब याद रखिएगा, रा साकिन से पहले जब भी या साकिन आएगा रा बारीक पढ़ा जाएगा, अगरचे या साकिन से पहले जबर भी हो। हालांकि हमने पढ़ा था अगर रा साकिन माकबल हरफ पर जबर या पेश हो, उस सूरत में रा को पुर पढ़ा जाता है। मगर यहाँ पर देखिए ये खास कंडीशन है, रा साकिन माकबल या साकिन, दैट्स इट। आपको उससे माकबल देखने की जरूरत नहीं है, ये बारीक पढ़ा जाता है। और ये कंडीशन भी वक्त की सूरत में होती है। कुरान मजीद में बहुत सारी मिसालें ऐसे हैं, जैसे हम पढ़ेंगे खैर, खैर। हालांकि रूल हमने इससे पढ़ा रा साकिन माकबल अगर जबर जेर, जबर और पेश हो तब पुर पढ़ा जाता है। मगर यहाँ पर माकबल साकिन माकबल जबर होने के बावजूद रा को हम बारीक पढ़ते हैं, क्योंकि रा साकिन माकबल या साकिन। इसी तरह कदीर, कदीर, रा साकिन माकबल या साकिन। उसके बाद छठी कंडीशन है रा इमाला, रा इमाला की सूरत में। ये एक खास कंडीशन है, ये भी एक कुरान मजीद में सिर्फ एक ही सूरत है, एक ही आयत है जिस तरह रा को इस तरह पढ़ा जाता है। रा को बड़ी या के साथ पढ़ा जाता है कुरान मजीद में। बड़ी या जो है, जिसको हम उर्दू में बड़ी या कहते हैं, वो एक ही बार इस्तेमाल हुई है। वो एक दुआ है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब वो अपनी नाव में सवार हुए थे, कश्ती में सवार हुए थे। उसको इमाला कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक लफ्ज है ना, इसको पढ़ेंगे, आम हालतों में लिखा होता है मजरीहा, है ना, जैसे आप देख रहे हैं मजरीहा लिखा है, मगर इसमें छोटी या के बजाय बड़ी या पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मजरेहा, मजरेहा, मजरीहा के बजाय मजरे, बढ़िया, मजरेहा। कुरान मजीद में बड़ी या सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुई है, वो इस लफ्ज में, इस कलमे में इस्तेमाल हुई है। ये भी एक खास कंडीशन आप याद रखिएगा, इसमें भी रा जो है वो बारीक पढ़ा जाएगा। आखिर कंडीशन वो ये है कि रा मकसूरा, जिस पर वक्फ जो है राउन के साथ वक्फ किया जाए, यानी रा साकिन होगा मगर वक्फ जो है वो राउन के साथ होगा। वो कैसे? वल फजर, वल फजर, इसमें रा जो है बारीक पढ़ा जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, इसमें भी कुछ नोट्स याद रखने हैं। मिस्रा, रा यहाँ पर पुर पढ़ा जाएगा। और आइनल क़ित्री पर तफखीम और तरकीक दोनों दुरुस्त है, यानी मिस्रा, मिस्रा या मिस्र, आप बारीक भी पढ़ सकते हैं, पुर भी पढ़ सकते हैं। आइनल क़ित्र, रा को बारीक भी पढ़ सकते हैं, पुर भी। यहाँ पे भी आपको चॉइस है, ये दो हरूफ ऐसे हैं, दो अल्फाज ऐसे हैं जिसमें आपको चॉइस है कि आप पुर पढ़े या बारीक। इसी तरह इदा यसर में भी आप तफखीम और तरकीक दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, बशर्ते अगर ये हालत वक्फ आप करेंगे, यसर पढ़ेंगे तो रा जो है बारीक पढ़ा जाएगा, मगर अगर आप इदा यसरी पढ़ेंगे तब आपके पास चॉइस है कि इसको बारीक, यानी तफखीम और तरकीक दोनों सूरतों में पढ़े। और लास्ट में इमाला के माने है झुकाना, यानी अलिफ को या की तरफ झुकाना, जिसको कहते हैं बड़ी या, बड़ी या पढ़ना। जैसे कि ऊपर मैंने बताया, इमाला की हालत में इमाला एक ही जगह किया जाता है, रा को झुकाया जाता है, छोटी या के बजाय बड़ी या की तरफ झुकाया जाता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, ये आपको अब क्लियर हुआ होगा कि रा के कायदे पुर और बारीक पढ़ने के क्या है। अब हम इस दर्स के नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वो ये है कि जिस तरह रा जो है कुछ कंडीशंस में पुर पढ़ा जाता है, कुछ कंडीशंस में बारीक। मोटी मोटी बात आपको मैं बताऊं, जब भी आप रा पे जबर पेश देखेंगे
تو را پر پڑھا جاتا ہے، جب زیر دیکھیں گے باریک پڑھا جاتا ہے۔ باقی چیزیں جو ہے یہ کنڈیشنل ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور جو میں نے آپ کو کچھ کنڈیشنز بتائے، ایکسیپشنل کنڈیشنز، یہ قرآن میں کسی جگہ ہے، وہاں پر کچھ نہ کچھ انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا۔ زیادہ اس میں باریکی میں جانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ اسی طرح را کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اللہ کے لفظ میں لفظ اللہ، جس کو ہم لام جلالہ کہتے ہیں، لفظ اللہ میں جو بیچ میں الف لام لکھا ہوا ہے نا، اس لام کو کہتے ہیں لام جلالہ۔ اس لفظ اللہ یعنی لام جلالہ کو بھی کبھی کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو یا الف ہو تو اس لام کو خوب موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے اللہ، اللہ، منہ بھر کے زبر ہے پہلے، اللہ سے پہلے زبر، یعنی اللہ کے الف پر زبر ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو وہ اللہ کے لام کے ساتھ ملے گا، تو خوب منہ بھر کے موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ، هو اللہ، اب دیکھیں ہونٹوں کو کیسے موٹا کیا جاتا ہے، منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، آواز کو موٹا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رفعہ اللہ، اسی طرح سبحانک اللہم، اسی طرح قالوا اللہم، اسی طرح اللہ، یعنی اللہ کے لام جس کو لام جلالہ کہتے ہیں، چاہے اللہم میں ہو چاہے اللہ میں ہو، اگر اس سے پہلے زبر پیش ہو تو اللہ کا لام لام جلالہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو لام جلالہ یعنی اللہ میں جو لام ہے لام جلالہ وہ باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، اب وہی اللہ ہے لام جلالہ، مگر اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا، بسم اللہ۔ اسی طرح قل اللہم، قل اللہم، ٹھیک ہے۔ اب ان دو لاموں کے علاوہ ہر جگہ اور ہر حالت میں لام باریک ہی ہوتا ہے، جیسے یعنی آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو لام کی ہم بات کر رہے ہیں نا، موٹا ہونا باریک ہونا، یہ صرف لام وہ لام ہے جو اللہ کے نام میں لکھا ہوا ہے، جس کو لامی جلالہ کہتے ہیں۔ اس لام کے علاوہ جہاں بھی آپ لام دیکھیں گے، چاہے اس سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، اس پر زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، وہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے واللہم یا اللہ الہ۔ صرف یہ صفت جو ہے یہ لام جلالہ کی صفت ہے، وہ لام جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم پڑھیں گے ان اللہ، اسی طرح حدود اللہ، اب اس کے برعکس میں بسم اللہ، اب یہاں باریک، اسی طرح عند اللہ، باریک پڑھا جاتا ہے۔ منیر صاحب آپ یہ جو آخر کے حروف ہے ذرا ان کو پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حزب الله۔ شاباش۔ اب یہاں بتائیے مجھے، یہ جو لامی جلالہ ہے، لامی جلالہ پھر سے میں بتاؤں، اللہ میں جو لفظ اللہ میں جو بیچ میں لام لکھا ہے نا، اس کو لامی جلالہ۔ اچھا، اس صورت میں یہ لامی جلالہ پہلی کنڈیشن میں حزب اللہ میں لامی جلالہ پر ہوگا یا باریک؟ پر ہوگا، موٹا پڑھا جائے گا، تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ شاباش۔ اس کے بعد پڑھیے، هو اللہ، اس میں بتائیے لامی جلالہ پر ہے یا باریک؟ یہ بھی پر ہے، پر ہے، ماشاءاللہ، ما قبل زبر، کیونکہ اللہ کے لفظ سے پہلے زبر۔ اس کے بعد پڑھیے، بإذن اللہ، اچھا، اس میں بتائیے لامی جلالہ پر ہے یا باریک؟ یہ باریک ہے۔ چلیے شوکت صاحب دوسری لائن آپ پڑھیے۔ من اللہ، اچھا، من اللہ، اب بتائیے اللہ کا لام جو ہے لامی جلالہ پر ہے یا باریک؟ یہ پر ہے۔ کیسے پڑھیے، ذرا پھر سے پڑھیے۔ من اللہ،
मिनल्लाह, मिनल्लाह। अब आपने पुर बताया ना, जब आपने पुर बताया तो उसको पुर भी पढ़िए, मोटा करके पढ़िए, आवाज को थोड़ा, इन्हें आवाज को बहुत ऊंचाई में ले आइए। जैसे मिनल्लाही, मिनल्लाही। मिनल हाँ पढ़िए, मिनल्लाहि बेहतरीन। अब आगे बढ़े। दूनिल्लाहि इसमें बताइए लामी जलाला पुर है या बारीक? बारिक। अच्छा, बात बाई भी आप मुझे बताइए, दूनी में वाव साकिन माकबल पेश, वाव पे एक मद है, कौन सी मद है ये? ये वाव लीन है। वाव लीन है? कैसे वाव लीन है? वाव लीन होता है वाव साकिन माकबल जबर, जैसे या लीन है या साकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस पे मद, मद इसमें असली, मद असली हाँ है मद इसका। असली। ये बताइए, जब मैंने आपको मद बताया तो लीन तो इसके अपोजिट में है ना, मद असली, क्योंकि वाव साकिन माकबल पेश वाव मद्दा आपने पढ़ा है, और चूंकि हरफी मद के बाद सब भी बंद नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास मद असली। अच्छा ये बताइए, दू मिन दू, अच्छा यहाँ तो हमने पढ़ा सिर्फ दू निल्लाहि, जो ये लामी जलाला में जो अलिफ है, इस पे कौन सी मद है? ये भी मद असली है। ये भी मद है असली, क्योंकि इसमें हरफ मद के बाद सब मद नहीं है। चलिए इसके बाद पढ़िए आप। बअसल्लाहु ता को नरम पढ़िए, बाअसल्लाह, और लामी जलाला मोटा पढ़िए, फिर से पढ़े। बअसल्लाहु। माशाअल्लाह, ये भी मोटा पढ़ा जाएगा। अच्छा शाहरुख, आप सूरतुल फील पढ़ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इसको पढ़ सकते हैं सूरतुल फील को? जी हजरत। पढ़िए, बिस्मिल्लाह की आऊज़ु के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। माशाअल्लाह। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। आप ओके। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील शाबाश। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। हाँ, फिम के बजाय पढ़ना है फिम, ऊपर के दांत नीचे के हो। बेहतरीन, माशाअल्लाह शाहरुख। अच्छा मुनीर साहब, आप जरा ये जो पहली आयत है ना सूरतुल फील, उसको जरा पढ़िए, पहली आयत को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रहीम, ألم हा पे मशक कीजिए, हा को वस्ते हलक से अदा करें। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل अच्छा ये बताइए, सबसे पहले आपने पढ़ा अलम, मीम साकिन के बाद ता है, मीम का कौन सा कायदा अदा हो रहा है? ألم تر मीम के हमारे पास सिर्फ तीन कायदे हैं। एक तो है इदगाम, जब मीम को मीम के साथ मिलाते हैं। दूसरा है इख्फा, जब मीम को, उसकी आवाज को छुपाते हैं। और ये तीसरा है इज़हार है इजहार, इजहार ये करना। हाँ। इज़हार ये इज़हार है अच्छा, इजहार के वक्त मीम को कैसे पढ़ेंगे आप जरा, मतलब आपके बैकग्राउंड में ना नॉइज आ रही है, अगर आप थोड़ा सा हटे अपनी जगह से, ताकि ये इसको क्लियर करे, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, दूसरे लोग भी इसको सुनेंगे फिर। मुझे ये बताइए कि मीम साकिन के बाद ता हो गए, इसको आपने इजहार किया, इजहार किसको कहते हैं? जब क्लियर मीम को क्लियर हम पढ़ेंगे क्लियर यानी पढ़ेंगे, जाहिर करेंगे और जल्दी करेंगे। जाहिर जैसे अगर आप करेंगे पढ़ेंगे हाँ अलम तारा, ये गलत हो गए, आपको पढ़ना है गलत अलम तारा, अलम तारा, अलम तारा। अगर आपने थोड़ी सी भी देरी की तो ये इख्फा में तब्दील हो जाएगा। आप पढ़िए। अलम तर कैफ ठीक है, आप बताइए, तारा में जो रा है इसको पूर्ण पढ़ेंगे या बारीक? इसको पूर्ण पढ़ेंगे पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए। अलम अलम तर कैफ तारा, अलम तारा। अब जब आपने पूर्व बताया, पूर्व तो पढ़ना भी है ना, रा नहीं, रा। अलम तारा, अलम तारा। पढ़िए। अलम तर तारा,
را را زبر را را نہیں را زبر را علم ترى علم ترى تا نہیں علم تا کو پر نہیں پڑھنا ہے. علم دیکھیں خوبصورتی جو ہے قرت کی ہے نا وہ اسی میں ہے کہ پر کو پر پڑھے باریک کو باریک پڑھے. اگر آپ دونوں کو فرق نہیں کریں گے تو جو خوبصورتی ہے نا قرت کی وہ ظاہر نہیں ہوگی. ایسے علم ترى ترى تا کو باریک را کو پر. آپ پڑھیے. علم ترى ہاں علم ترى كيف اچھا فعل رب کائفہ میں یا ساکن ماقبل زبر. آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ یس ساکن ما قبل ماقبل زبر زبر نہیں ہے تو یا لین ہے یہ کائفہ. یا ہاں اب میں اس لیے آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کو قاعدے پتہ بھی چلے. فعل ربک ربک میں را پہ زبر ہے یہ پر پڑا جائے گا را یا باریک؟ پر اور شاباش. بِأَص صاد جو ہے یہ پر پڑا جائے گا یا باریک؟ پر پڑھا جائے گا. کیوں صاد کیوں پر پڑا جائے گا؟ یہ ما قبل زبر ہے. نہیں یہ حروف مستعلیہ میں ہے. حروف مستعلیہ ماقبل زبر زیر پیش کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 7 حروف ہمیشہ پر پڑے جائیں گے. آپ کو صرف را اور اللہ کے لام میں یہ کنڈیشن دیکھنا پڑے گا. باقی جو حروف مستعلیہ کے 7 حروف ہیں نا جو میں ابتدا میں نے بتائے وہ ہمیشہ پر پڑے جائیں گے. اصحاب ہا پہ مشق آپ کو کرنی ہے. ہا سے ادا نہیں ہو رہا. اور فیل میں جب لام کو ہم ساکن بنائیں گے یا پہ کون سی مد آئے گی؟ مد اصلی. نہیں کہاں سے مد اصلی کی؟ لام پہ تو ہم نے سکون کیا. ہم نے تو عارضی سکون لایا نا لام پہ. حرف بد کے بعد سکون عارض آیا تو سبب آ گیا نا مد عارض. ہاں اب ان چیزوں کو اب یاد رکھیے گا. اگر فی پڑھتے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ فی پڑھتے تب مد اصلی. مگر ہم چونکہ وقف کر رہے ہیں وقف عارض لا رہے ہیں انہیں سکون عارض لا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ دوسری آیت پڑھیے. علم یجعل یا جیم پہ قلقلہ. دیکھیے آپ تھوڑی سی محنت کیجئے. اب کافی آگے بڑھ چکے. آج ہمارا 13th لیکچر تھا. علم یجعل شاباش. علم یجعل ہاں علم یجعل کیدہم فی تضلیل. تب داد پہ قلقلہ نہیں ہے. دیکھیے علم میں میم ساکن کے بعد یا تو یہاں پہ بھی اظہار شفوی. یجعل جیم قطب جد میں ہے حروف قلقلہ میں ہے ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا. کیدہم یا ساکن ما قبل زبر تو یا لین. میم ساکن کے بعد فا یہاں پہ بھی اظہار. فی یا ساکن ما قبل زیر اس کے بعد کوئی سبب مد نہیں تو یہ مد اصلی. تضلیل داد کی آواز پہ قلقلہ نہیں ہوتا مگر موٹا پڑا جائے گا پر پڑا جائے گا. تضلیل یہاں لام ساکن بنے گا یا پہ مد عارض آئے گی. اگر ہم اس کو ملائیں گے تضلیل تو دو زیر کے بعد واو یہ ادغام بغنہ ہو جائے گا مگر ٹھہرنے کے وقت یہاں پر آپ کو مد عارض کرنا پڑے گا. چلے وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. اس صورت کو آپ یعنی اچھی طرح سے پڑھیے گا. شوکت صاحب آپ بھی شاہ رخ نے تو پڑھ ہی لیا. اسی طرح سے ہم انشاءاللہ آگے والے لیکچر میں بھی ہم دوسرا ایک قاعدہ پڑھیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ قاعدہ پڑھیں گے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.